ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆ ਸਕੀਏ। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, God. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ, 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 oh Lord. Thank you, 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 Lord. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, 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 Lord. ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, Lord Jesus. ਤੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਯੋਗ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, God. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਤਾਰੀਫ, Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, 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 ਧੰਨਵਾਦ। Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ, Lord Jesus, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ, Lord Jesus, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾਵੰਦ। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਸੌਂਪਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ, Lord Jesus, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੇ ਬਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ Lord Jesus, ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ Lord. ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ, Lord. Hallelujah. ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਓਪਨਿੰਗ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸਾਰਾ जी ठीक है, आवाज आ रही है ना सबको? फिर शुरू करते हैं। बाप बेटे कुछ नाम समीन बाकी शुरू करते हैं कि आपने मौका दिया, आपके में हाजिर है। आप आगे पाक पढ़ने लगे, प्रश्न करने लगे, ज़िक्र जिंदगी करते हैं। आप हम सबको हाथ हम सबको बख्श दीजिए। आप मुझे पाकलाम पढ़े हमारे बास बरकत है। हम जो प्रश्न करें आपको उसको बोला, आपको पसंद है। आप हम सब गलों को शेयर मस्ती कर आगे प्रशिश कर सकें। हम हमारी प्रश्न अब तक लग जाए। आपने क्या लोग हम ना कर तक नहीं सुना। जितनी प्रशिश करें सब तक लग जाए। हम सबको हाथ आप मुझे पाकलाम पढ़ा के पाकलाम भेद की बात हम उसको समझ के पढ़ सकें। आप हमारे पर वो भेद की बात खुले। आप स्कूल में पेमेंट का हॉल्ड आप कैसे मिलता है, किसी ना कोई ऑप्शन ना है। आप हम सबको हाथ हम जिसे दुआ इंतजार करने आप आके हजूर पर खुद में पहुंचने का ड्रामा जल्दी से मिला। आप हम सबको हाथ हो हम सबको तुम बख्श दीजिए। आप मेरा शुदा उसने कबूल कीजिए, इसमें नौसी के नाम है, आमीन। ਆਮੀਨ। Praise the Lord. ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਸੈਡਰਿਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, praise हम ज़बूर 91 गाने लगे हैं, उसका दूसरा हिस्सा यार अब मेरी पाना है।
Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Sarasama, brother ji, sister ji. ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੀ ਪਨਾਹ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡਾ ਗਾੜ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡਾ ਬਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਚਟਾਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਬਚਾਵਣ ਵਾਲਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਸਟਰ ਸਾਨੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। Praise the Lord. And praise the Lord. रो रो के यसु अगे कीतियां तू दुआवां सी, हर वेले यसु दियां तकदा तू रहां सी। यसु तेरा हुण तैनू गल लाउण वाला ए, तेरियां दुआवां दा जवाब आउण वाला ए, तेरियां दुआवां दा जवाब आउण वाला ए, तेरियां दुआवां दा जवाब आउण वाला ए। एक दिन दुख ते अयूब ते भी आया सी, खोया सी जो ने उतों वध के ही पाया सी। एक दिन दुख ते अयूब ते भी आया सी, खोया सी जो ने उतों वध के ही पाया सी। दुगना हुण तेरी चोली पाण वाला ए, तेरियां दुआवां दा जवाब आउण वाला ए, तेरियां दुआवां दा जवाब आउण वाला ए। तेरी ए गरीबी उते जेड़ा भी सी हसिया, कख तो बना के लख यसु ने है दसिया। तेरी ये गरीबी उते जेड़ा भी सी हसिया, कख तो बना के लख यसु ने है दसिया। सारिया तू वध के ओ तेनू चाहने वाला ए, तेरियां दुआवां दा जवाब आउण वाला ए, तेरियां दुआवां दा जवाब आउण वाला ए, तेरियां दुआवां दा जवाब आउण वाला ए। तू सब कुछ दिता और की मैं मंगना, तेरे रंग विच यसु खुद नू मैं रंगना। तू सब कुछ दिता और की मैं मंगना, तेरे रंग विच यसु खुद नू मैं रंगना। तेरा रंग मेरे उतों कौन लाउण वाला ए, तेरियां दुआवां दा जवाब आउण वाला ए, तेरियां दुआवां दा जवाब आउण वाला ए, तेरियां दुआवां दा जवाब आउण वाला ए। Praise the Lord. जी, praise the Lord. Thank you, sister ji. Praise the Lord. God bless you. Hallelujah. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਸਟਰ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਮਿਲ ਕੇ। ਸਿਸਟਰ ਰੋਜ਼ਾ ਜੀ। Praise God.
बाप तू जो आसमां पे है हमारे बाप आसमां पे है तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाहत आए तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाहत आए तेरी मर्जी ज़मीं पे हो पूरी जैसी आसमां पे है ऐ हमारे बाप तू जो आसमां पे है ऐ हमारे बाप तू जो आसमां पे है हमारे रोज की रोटी हमें दे हमारे रोज की रोटी हमें दे गुनाह कर माफ सारे तू हमारी है खुदा गुनाह कर माफ सारे तू हमारी है खुदा हमने भी अपने गुनाहगारों को अब माफ किया हमने भी अपने गुनाहगारों को अब माफ किया आज़माइश में न ला आज़माइश में न ला हमको बुराई से बचा ऐ हमारे बाप तू जो आसमां पे है हमारे बाप तू जो आसमां पे है क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है तेरे ही है तेरे ही है आमीन आमीन हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड Amen. Praise the Lord. Thank you, Sister Ji. Hallelujah. Praise the Lord. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ Hallelujah. Praise the Lord. ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. God, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਗੀਤ ਗਾਇਆ Lord Jesus. ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ Oh Lord Jesus, ਜੋ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ Lord Jesus, ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus, ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏ ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਮਦਦ ਕਰ Lord Jesus, Hallelujah. Oh yes, Lord Jesus, ਖੁਦਾਵੰਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ Lord Jesus, ਤੇ ਤਾਰੀਫ Lord, Hallelujah.
ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰ ਪਾਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਯੈਸ ਲਾਰਡ। ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਖੁਦਾਵੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੀ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾਵੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਖੁਦਾਵੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ, ਸਾਡੇ ਰੂਹਾਨੀ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ ਤੋਂ ਖੋਲ ਦਿਓ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਖੁਦਾਵੰ ਜੋ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹੀਏ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ, ਖੁਦਾਵੰ ਉਹ ਕਲਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਖੁਦਾਵੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਖੁਦਾਵੰ ਜੋ 30 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ 60 ਗੁਣਾ ਸਗੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਖੁਦਾਵੰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇ ਲਹੂ ਚ ਛਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਖੁਦਾਵੰ ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਹੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇ ਲਹੂ ਚ ਛਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਖੁਦਾਵੰ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਖੁਦਾਵੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਣ ਖੁਦਾਵੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੇਰਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਖੁਦਾਵੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਖੁਦਾਵੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਦਰ ਜਵੇਦ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਖੁਦਾਵੰ ਤੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਓ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਯੈਸ ਲਾਰਡ, ਯੈਸ ਲਾਰਡ। ਖੁਦਾਵੰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਜੰਗ ਜੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਖੁਦਾਵੰ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਹਾਨੀ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਖੁਦਾਵੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਚ ਕੱਟੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਯੈਸ ਲਾਰਡ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਲਾਰਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ। ਖੁਦਾਵੰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਖੁਦਾਵੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਖੁਦਾ ਮੰਗਿਆ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਪਾ ਲਿਆ ਲਾਰਡ। ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਹੀਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਈਕ। ਸਿਸਟਰ ਹੁਣੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ। जी, प्रेज द लॉर्ड। सोनिया और सबको खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद के नाम को आप इसी तरह अपनी जिंदगी से ऊंचा करते रहें, आपकी फैमिली में खुदावंद इसी तरह अजीब अजीब बड़े बड़े काम करता रहे। खुदावंद आपके ऊपर गहरे अपने भेद खोले। गॉड ब्लेस यू सोनिया। और खुदावंद का हम शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, उसकी आज की हजूरी के लिए। हमारे जो प्रस्तिश है खुदावंद के हुजूर चढ़ाई, उसके लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने इस्तेमाल किया। गॉड ब्लेस यू। जी, हम इस्तिश्ना 21 बाब में है पढ़ रहे हैं, है ना? तो हमारे साथ रीडिंग में वफा है शायद, है ना? जी दी। जी वफा। हमने पूरा चैप्टर पढ़ना है? जी अंजना है ना? वफा और अंजना। तो हमने मेरे हाल 14 आयत तक उसको थोड़ा कर लिया था, तो हम आगे से पढ़ेंगे 15 लौटे का आयत। हक विरासत, हके विरासत है ना? हाँ हाँ। सिस्टर तो अंजना पहले मैं पढ़ूंगी क्या आप? आप पढ़ लो, कोई बात नहीं। ओके, ननीबा जी पूरा पढ़ना है 23 आयत तक? हाँ हाँ। 22 तक। लौटे का हके विरासत। अगर किसी मर्द की 2 बीवियां हों और एक महबूबा और दूसरी गैर महबूबा हो, और महबूबा और गैर महबूबा दोनों से लड़के हों, और पहलौठा बेटा गैर महबूबा से हो, तो जब वो अपने बेटों को अपने माल का वारिस करे, तो वो महबूबा के बेटे को गैर महबूबा के बेटे पर, जो फिल हकीकत पहलौठा है, फौकियत देकर पहलौठा ना ठहराए, बल्कि वो गैर महबूबा के बेटे को अपने सब माल का दूना हिस्सा देकर उसे पहलौठा माने, क्योंकि वो उसकी कुवत की इब्तदा है और पहलौठे का हक उसी का है। नाफरमान बेटे के बारे में, अगर किसी आदमी का जिद्दी और गर्दनकश बेटा हो, जो अपने बाप या माँ की बात ना मानता हो और उनकी तंबिया करने पर भी उनकी ना सुनता हो, तो उसके माँ बाप उसे पकड़कर और निकाल कर उस शहर के बुजुर्गों के पास उस जगह के फाटक पर ले जाएं, और वो उसके शहर के बुजुर्गों से अर्ज करें कि ये हमारा बेटा जिद्दी और गर्दनकश है, ये हमारी बात नहीं मानता,
اور اڑاؤ اور شرابی ہے، تب اس کے شہر کے سب لوگ اسے سنسار کریں کہ وہ مر جائے۔ یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دور کرنا، تب سب اسرائیلی سن کر ڈر جائیں گے۔ مختلف آئین و ضوابط۔ اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس سے اس کا قتل واجب ہو اور تو اسے مار کر درخت سے ٹانگ دے، تو اس کی لاش رات بھر درخت پر لٹکی نہ رہے، بلکہ تو اسی دن اسے دفن کر دینا، کیونکہ جسے پھانسی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے ملعون ہے۔ تا نہ ہو کہ تو اس ملک کو ناپاک کر دے جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو میراث کے طور پر دیتا ہے۔ آمین۔ جی آمین۔ Praise the Lord. ਜੇਠੇ ਦਾ ਹੱਕ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਦੋ ਤੀਵੀਆਂ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਘਿਨਾਉਣੀ, ਅਤੇ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਘਿਨਾਉਣੀ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਜਨਨ ਅਤੇ ਜੇਠਾ ਘਿਨਾਉਣੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮਿਲਕ ਵੰਡੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੇਠੇ ਦਾ ਹੱਕ ਘਿਨਾਉਣੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇਠਾ ਹੈ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਿਨਾਉਣੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਦਾ ਹੈ ਦੁੱਗਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁੰਡ ਹੈ, ਜੇਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਉਸਦਾ ਹੈ। ਆਕੀ ਪੁੱਤਰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਬਾ ਜਾਂ ਆਕੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੇ, ਜਦ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਝਿੜਕਣ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁੱਬਾ ਅਤੇ ਆਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੇਟੂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸਨੂੰ ਇਉਂ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰੀ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰਨਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਉਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪਾਪ ਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਮੌਤ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੁੱਖ ਉਤੇ ਟੰਗ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸਦੀ ਲੋਥ ਰੁੱਖ ਉਤੇ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੱਬ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਟੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਕ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू वफा और रंजना। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और खुदावंद का हाथ आपके ऊपर बड़ा रहे। खुदावंद हमेशा अपने परों में छुपा के रखे, बाजू में पनाह मिलती रहे आपको। गॉड ब्लेस यू। ये वैसे तो कह लें कि जो आपने 15 आयत से पढ़ा है ज्यादा आपको पता ही होगा, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि हम इसको थोड़ा सा एक थोड़ा फर्क तरीके से, या पूरी बाइबल में ये हमें इस का जवाब क्या मिलता है, थोड़ा सा हम इसमें देखेंगे, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे आपको पता है बहस भी करते हैं और बहुत बात होती है। इसलिए मैं चाह रही थी कि इसको थोड़ा सा जितनी मुझे जैसे कह लें खुदाउन का पाकरू मुझे गाइड कर रहा है कि डिटेल से इस पे बात करते हैं कि दो बीवियों का जब बात होती है तो हमारे भी क्रिश्चियन में भी ये बात बहुत होती है कि ये जी हमारे नबी पैगंबर और सब दो दो शादियां या इससे भी ज्यादा किया करते थे, है ना। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि चलें थोड़ा सा इस पे हम सीखते हैं कि दो बीवियां, यानी इसमें बात हो रही है और पलोठे की बात हो रही है ना। तो हम देखेंगे कि दोनों को थोड़ा सा अलग अलग कि अगर खुदावंद ने देखें यहाँ पे गलती हो गई है कि जो किसी मर्द ने दो बीवियां कर ली हैं, लेकिन आगे खुदावंद चाह रहा है कि ये और गलती ना करे, है ना। क्योंकि ये एक किस्म का कानून जो है नहीं था कि दो बीवियां की जाएं, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो फिर खुदावंद चाह रहा था कि जो पलोठे का हक है वो बड़े बेटे को ही मिले, है ना। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसमें देखें कि पलोठे का हक अगर किसी को वहां पे नहीं मिला तो उसकी क्या वजह थी, है ना। या दो बीवियां क्या हमें इजाजत है या नहीं है ना, पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में, है ना।
تو اس کے لیے ایک میں چاہتی ہوں کہ وفا آپ نکالنا پیدائش کی کتاب اس کا 4 باب کہ یہ کہاں سے شروع ہوا، کس نے کیا، جس نے 2 بیویاں کی. اور اگر ہم اس کی کہہ لیں کہ شخصیت دیکھیں یا وہ اس کا رویہ کیا تھا تو ہم دیکھتے ہیں. وفا ہمارے ساتھ ہے. 4 باپ اس کی. ہاں 4 باب اس کی آپ 11 آیت سے ہی پڑھو کہ جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس نے کی تھی 2 بیویاں اور اس کا کردار کیسا تھا یا خداوند کے ساتھ اس کا رشتہ کیسا تھا، ہے نا. تو اب 11 پیدائش 4 باپ اس کی 11 ہے. 11 آیت سے آپ پڑھنا. ہاں اوکے. 11 سے اور 22 آیت تک. اوکے. ہاں جی پڑھو. اور اب تو زمین کی طرف سے لانتی ہوا جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے. جب تو زمین کو جو جوتے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی اور زمین پر تو خانہ خراب اور آوارہ ہوگا. تب قائن نے خداوند سے کہا کہ میری سزا برداشت سے باہر ہے. دیکھ آج تو نے مجھے روح زمین سے نکال دیا. اب میں تیرے حضور سے روپوش ہو جاؤں گا اور زمین پر خانہ خراب اور آوارہ رہوں گا. اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا. تب خداوند نے اس سے کہا نہیں، بلکہ جو قائن کو قتل کرے اس سے 7 گنا بدلہ لیا جائے گا. اور خداوند نے قائن کے لیے ایک نشان ٹھہرایا کہ کوئی اسے پا کر مار نہ ڈالے. سو قائن خداوند کے حضور سے نکل گیا اور عدن کے مشرق کی طرف نود کے علاقہ میں جا بسا. اور قائن اپنی بیوی کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے حنوک پیدا ہوا. اور اس نے ایک شہر بسایا، اس کا نام اپنے بیٹے کے نام پر حنوک رکھا. اور حنوک سے اراد پیدا ہوا اور اراد سے مہیویال پیدا ہوا اور مہیویال سے متصوع کیا مجھے نہیں یہ پڑھنا آ رہا. متصوع پیدا ہوا اور متصوع سے لمک پیدا ہوا اور لمک 2 عورتیں بیاہ لایا. ایک کا نام ادا اور دوسری کا نام ضلع تھا. اور ادا کے یابل پیدا ہوا اور وہ ان کا باپ تھا جو خیموں میں رہتے اور جانور پالتے ہیں. اور اس کے باپ کا نام یوبل تھا، وہ بین اور بانسلی بجانے والوں کا باپ تھا. اور ضلع کے بھی توبل قائن پیدا ہوا جو پیتل اور لوہے کے سب تیز ہتھیاروں کا بنانے والا اور نما چلیں ٹھیک ہے. بس ہاں میں نے یہی بتانا تھا ہاں کہ مجھے نہیں پڑھا جا رہا. اوکے ٹھیک ہے کہ یہ کس نے یعنی 2 بیویاں یعنی کی. اور اگر ہم پیچھے اس کی دیکھیں کہ وہ لانتی تھا، وہ خانہ خراب تھا، آوارہ تھا. اور یعنی قائن جو تھا جس نے اپنے بھائی ہابل کو مارا تھا. آپ سب کو ہی اسٹوری کا پتہ ہے نا کہ ہابل کو اس نے مارا تھا. اور یہ کیا ہو گیا تھا، یہ لانتی ہو گیا تھا اپنے بھائی کا خون کرنے کی وجہ سے، ہے نا. یہ قاتل تھا اور اس نے اپنے بھائی کا خون بہایا تھا. پھر کیا یہ خانہ خراب تھا، یہ آوارہ تھا. اور اس کے جو اولاد پیدا ہوئی یعنی تو لمک نے جو تھی 2 بیویاں کی تھی. تو یہاں سے کہہ لیں کہ یہ ایک سٹارٹ جو تھا وہ ہوا تھا کہ 2 بیویاں. اور بھی آگے ہم اس کے بعد کافی دیکھتے ہیں کہ جیسے کہہ لیں انہوں نے 2 شادیاں کی یا 2 سے بھی زیادہ کی. پر میرا یہ بتانے کا یہ مقصد تھا، یہ یا پیرا یہ پڑھنے کا یہ مقصد تھا کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بائبل کے حساب سے ہمیں ملتا ہے کہ کس نے کی. آگے آدم کے اور بھی بچے تھے جنہوں نے، ہے نا، ہمیں پتا ہے ان کا نہیں ہم دیکھتے. لیکن قائن جو تھا جس نے اپنے بھائی کا قتل کیا اور جس کو خداوند کی طرف سے کہنے لعنت ملی تھی، اس نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا کہ 2 بیویاں وہ بیاہ لایا تھا، ہے نا. اور پھر یہ سلسلہ کہہ لیں کہ چل پڑا تھا، ہے نا. تو ہم نے پھر آگے آ کے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو یعقوب تھا
उसने भी 2 बीवियां की, यानी लिया और जो राखल थी, है ना, उसने भी 2 बीवियां की। और उसका भी हम देखते हैं कि जो पहला बेटा था रोबन, है ना, उसने, हम एक और हवाला पढ़ते हैं जिससे आपको और पता चले कि उसका जो पहला बेटा था यानी रोबन, वफा आप निकालना पैदाइश की किताब, उसका 49 चैप्टर और उसकी 3 से 4 आयत तक हम पढ़ते हैं। ओके 49 हाँ जी। चैप्टर्स की। ओके। ए रॉबन, तू मेरा पहलौठा, मेरी कुव्वत और मेरी शहजोरी का पहला फल है। तू मेरे रोब की और मेरी ताकत की शान है। तू पानी की तरह बेसबात है, इसलिए तुझे फजीलत नहीं मिलेगी। हाँ, है तो वो पलोठा था, लेकिन क्या हुआ कि उसको उसका एक पलोठे का जो हक था वो नहीं मिला था, क्योंकि उसने क्या किया था, अपने बाप की जो हरम थी, जो बीवी थी, उसके साथ उसने यानी उसको यूज किया था, उसके साथ, है ना, बिछोने पे चढ़ गया था, है ना, तो इसलिए उसको पलोठे का जो हक था वो नहीं मिला था। और एक और हवाला हम पढ़ते हैं जिसमें यानी 2 बीवियों के जब बारे में यानी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बताया कि अ, अंजना आप निकालना मत्ती 19 बाब और उसकी 4 से 7 आयत तक पढ़ते हैं हम। हाँ जी, वर्ष मजी 4 19 बाब और उसकी 4 आयत से हम पढ़ते हैं कि 2 बीवियों के बारे में हमें खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा। एक तो हमने देखा कि पैदाइश में अ, कि काइन जो था, उसने 2 बीवी, उसके औलाद ने यानी उसकी नस्ल में से 2 बीवियां उसने की थी, लेकिन खुदावंद ने हमें क्या कहा, खुदावंद यीशु मसीह के हाँ जी, खुद के अल्फाज क्या है, मुंह के उसके बातें। ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਸਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਮਰਦ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕੋ ਸਰੀਰ ਹਨ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਅੱਡ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਖਤ ਦਿਲੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੁੱਢੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੂਈ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇ ਸੋ ਉਹ ਜਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੀਵੀਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਭ ਲੋਕ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ, हाँ जी ਕਿਉਂਕਿ पास्टर, ਅਜਿਹੇ ਹਾਂਜੀ ਆਮੀਨ। ठीक है। हाँ, क्योंकि आगे वो शादी ना करना ना उसके बारे में है, लेकिन हमने अभी सिर्फ ये देखना है कि दूसरी शादी की इजाजत है या हमें नहीं है ना, यानी हम मसीहियों को, जिसमें हमें ये पता चल रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह के खुद के मुंह के अल्फाज हैं कि बिल्कुल इजाजत नहीं है, कि सिवाय इसके कि अगर बीवी हरामकार है तो फिर भी लिखा है कि वो उसके साथ कोई दूसरा जो है वो शादी ना करे, है ना। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर मूसा ने जब इजाजत दी थी कि तलाक दे सकते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने इसको भी क्लियर किया कि उनकी सख्त दिली की वजह से। इसका मतलब है कि अगर कोई मर्द इस तरह करता है तो इसका मतलब है कि वो सख्त दिल है, तो अ, फिर वो दूसरी शादी कर सकता है, या तो इसलिए हमारे जो मसीही हैं उनमें दूसरी शादी की इजाजत नहीं है, यानी कि 2-2 बीवियां जो है रखें। लेकिन अगर पुराने अहदनामे में वो जो तो वो मूसा ने उनको उनकी सख्त दिली की वजह से इजाजत दी थी
لیکن खुदावंद का ये कानून नहीं था, या खुदावंद ने जिस तरह अभी ये 4 आयत में हमने पढ़ा कि इब्तिदा से ये नहीं था। खुदावंद ने मर्द और औरत को एक जिस्म बनाया है, तो एक जो जिस्म है वो कैसे जुदा हो सकता है ना? एक बदन है, वो कैसे उसको एक किस्म का हम साफ अगर कहें तो कैसे उसको काट सकते हैं, कैसे अलग कर सकते हैं, है ना? ये हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल खुदावंद के कानून के कह लें खिलाफ है बात कि हम दूसरी शादी कर लें। इसलिए मसीही जो हैं उनको एक ही बीवी अ, के लिए कहा गया है। तो इसलिए ये ज़रूर याद रखें, जैसे कि हमने ये इस चैप्टर में पढ़ा कि अ, उधर 2 बीवियाँ थी, तो इसलिए बहुत जैसे कह लें कि एक जब ये लोग पढ़ते हैं मसीही, तो वो इस पे बात करते हैं कि जी उसको भी इजाज़त थी या उसको भी, तो उन्होंने किया था। तो खुदावंद की तरफ से ये इजाज़त नहीं थी, इसलिए हम जो मसीही हैं वो एक ही बीवी यानी करें, यानी एक मर्द जो है एक ही उसकी बीवी हो। तो हम एक और हवाला पढ़ते हैं, इफिसियों 5 बाब उसकी 31 आयत। तो मैं इस हवाले से आप सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने इब्तिदा से कहा है या फिर अब खुदावंद यीशु मसीह का मंसूबा क्या था कि एक ही बीवी होनी चाहिए, उसके पीछे राज क्या है, भेद क्या है कि हमें 2 बीवियों की इजाजत नहीं है। इफिसियों 5 बाब और उसकी आप 31 आयत से पढ़ना 33 आयत तक। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਭੇਤ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿਖੇ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, इसमें ये अ, जो 32 आयत है, 32 आयत, उसमें खुदा के बंदा ने हमें ये बताया कि ये भेद है, क्योंकि क्या है, कलीसिया जो है मसीह की बीवी है, मसीह की दुल्हन है, खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है। तो फिर हम एक और वो पढ़ते नहीं हैं, लेकिन आप सबको शायद याद ही हो कि स्टडी में भी और मैंने उस चीज़ का काफ़ी ज़िक्र किया कि पालूस रसूल ने हमें बताया कि मैं तुम्हारी एक ही शौहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है, यानी कलीसिया के साथ पालूस रसूल बात कर रहा है कि मैंने एक ही शौहर के साथ तुम्हारी जो मंगनी है वो की है, यानी खुदावंद यीशु मसीह के साथ। तो इसलिए भी अगर हम ये देखें कि 2 बीवियाँ, क्या हमारा खुदावंद यीशु मसीह क्या है, वो 2 शादियाँ करेगा, या क्योंकि है तो ये भेद, मतलब रूहानी तौर पे उसने हमारे साथ शादी की है, या रूहानी तौर पे वो हमारा शौहर है, जिस्मानी तौर पे नहीं। अ, तो क्या खुदावंद यीशु मसीह जो कानून है उसको तोड़ेगा, है ना? कि 2 बीवियाँ करे, है ना? तो इसलिए ये भेद की बात है, लेकिन हमारे जो कह लें कि हमारे लोग जो हैं, हम मसीही जो हैं, इस बात को अगर समझ लें, खुदावंद उनकी आँखें खोले कि जो खुदावंद का मंसूबा है, वो एक ही बीवी के साथ या एक ही शौहर के साथ उसका प्लान है, जिस तरह के आदम और हवा को बनाया गया था, है ना? बिल्कुल इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह के साथ हमारी जो शादी है, हमारी जो मंगनी है, जब हमें पाक रूप मिलता है, तो हमारी मंगनी खुदावंद यीशु मसीह के साथ हो जाती है ना? तो इसलिए ये भेद की बात है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन हैं। जो भी ये कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह जब बादल पे आएगा, बदली पे आएगा, तो हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करने वाले होंगे। यानी कि दुल्हन को लेने आ रहा है। और भी काफ़ी आयतें हैं, लेकिन आप सबको ये याद होगा कि हम गीतों में भी गाते हैं कि रूह और दुल्हन भी कहती है कि आप मुकाशवा की किताब में, है ना? तो खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन कौन है? हम जो कलीसिया है ना? हम जो खुदावंद यीशु मसीह के खून से धुली हुए हैं, या उसकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो पाकीज़ा है, जो पाक है, जो पाक दामन कमवारी है, वो खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है।
तो वो जब खुदा यीशु मसीह बादलों पे आएगा तो हवा में उड़कर वो इस्तकबाल करने वाली होगी, उसकी दुल्हन जो है। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह एक ही दुल्हन को लेने आ रहे हैं। जिस तरह पौलुस रसूल ने कहा कि उसने एक ही शौहर के साथ हमारी जो मंगनी है, जो निस्बत है वो की है ना? तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने हमें एक ही बीवी के लिए कहा है। को मर्द जो है वो 2-2 बीवियाँ उसको इजाज़त नहीं है। और अगर उसने मूसा ने इजाज़त दी थी तो उसके पीछे भी वजह थी। तो इसलिए ज़रूर ये हम जो मसीही हैं वो ये याद रखें कि हम जो ये 2-2 शादियाँ करते हैं, इजाज़त दे देते हैं। बहुत सारी मिशनों में आपको पता है कि चल रहा है, हमारे मसीही इस बात को यानी कह लें कि भूल गए हैं या वो मानते नहीं हैं इसको। और नए ऐहदनामे में भी यानी हम देखते हैं, लेकिन खुदा हमें जो बात कह लें ज़्यादा ज़रूरी जब मानना है वो खुदा यीशु मसीह की खुद मुँह की बातें हैं जो अंजीलों में हमें मिलती हैं। और वो हम तक पहुँची कैसे? खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों की बदौलत वो हम तक पहुँची हैं। इसलिए हमें जो है खुदाम यीशु मसीह की तालीम पे चलना है। जो नई हम कलीसिया है यानी नए ऐहदनामे की, उन उनको पुराने ऐहदनामे में ठीक है। इसीलिए खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि मैं शरीयत को ख़त्म करने नहीं आया, बल्कि उसको पूरा करने आया। जो इस तरह के जैसे यही एक रूल कह लें जो एक बनाया था मूसा ने, उसको खुदाम यीशु मसीह ने आके पूरा किया कि इस तरह नहीं है, वो इब्तिदा से इस तरह था। तो इसलिए ज़रूर जो हमें खुदावंद यीशु मसीह बता रहा है उसके मुँह की बातें हैं, उस पे अमल करना है, बजाए कि हमें और क्योंकि जो तालीम है, जो एक स्टडी बनाई जाती है, वो किसी एक आयत पे नहीं बनाई जाती है ना। जिस तरह हम इस आयत को लेके कहें कि हाँ जी उस वक़्त ये तोरा में लिखा हुआ था, तो इसका मतलब है कि 2 बीवियाँ करने की हमें इजाज़त है, या हमारे नबियों ने की, दाऊद ने की, है ना? सुलेमान बादशाह ने की। और तो इसलिए हम उस पे स्टडी नहीं बना सकते, है ना? कि हम कहेंगे हम भी ये कर सकते हैं। हमें पूरी बाइबल में से देखना है उसके जो कह लें उसके नुकसान, और जिस तरह शराब की एक कह लें कि एक स्टडी बनाई जाती है, तो वो एक आयत से नहीं कि हाँ, पौलुस रसूल ने कहा था कि अगर अ, पेट की उसकी कह लें खराबी की वजह से आप उसको पी सकते हैं, तो उस एक आयत को नहीं लेना, हमने पूरी बाइबल में से उसकी स्टडी करनी है। बिल्कुल इसी तरह शादी की जब बात हो 2 बीवियों की, तो हमने पूरी बाइबल में से देखना है कि इब्तिदा में क्या था और खुदावंद ने हुक्म क्या की दिए, और उसके नुकसान क्या थे या उसके नतीजे क्या निकले थे, है ना? या खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने हमें क्या तालीम दी है। तो इसलिए ज़रूर इस बात को याद रखें, और ये हवाले हमें वाज़िया बताते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने, पौलुस रसूल ने हमें क्या कहा। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि ये हमें पता हो, है ना? और दूसरा हमें मिलता है इसमें जो है कि हक जो है पलोठे का, वो पलोठे को ही मिलना चाहिए। चाहे वो अ, मतलब दूसरी बीवी से हो, अ नो सॉरी, यानी जिसको वो जो उसकी महबूबा नहीं है, जिसको वो इतना मोहब्बत नहीं रखता, उससे बच्चा पैदा हो, बेटा पैदा हो, उसको पलोठे का हक मिलना चाहिए। लेकिन हम अगर देखते हैं कि अम, जो याकूब था, उसकी 2 बेटियाँ थी, ओह सॉरी 2 बीवियाँ थी, लिया और राखल। लेकिन याकूब ने जो एक बरकत दी थी, वो यूसुफ को दी थी, या उसके बेटे को दी थी, मनस्सी को दी थी और इफ्राइम को दी थी, है ना? और रोबन को नहीं दी थी। हालाँकि रोबन जो था पलोठा था, और वो लिया से पैदा हुआ था, जिसको याकूब जो था वो अ, उससे मोहब्बत नहीं रखता था, है ना? और अगर उसकी हम भी ज़िंदगी देखें, जब लिया और राखल, तो उस उनके रवैये भी देखें तो उनमें आपस में बहनें थी बेशक, लेकिन उनमें कह रहे कि एक एक लड़ाई-झगड़ा कह लें या एक वो होती रहती थी, है ना? तो इससे भी हमें पता चलता है कि हमें दूसरी जो शादी है, जो बहन के ऊपर है,
वो एक या दूसरी बीवी के ऊपर वो एक जुल्म जो है वो नहीं करना चाहिए, है ना? और लिया से रोबन जो था पैदा हुआ, लेकिन जो याकूब था उसने बरकत जो थी वो यूसुफ को दी। अंजना आप निकालना हवाला अंजना है हमारे साथ? हाँ जी, हाँ जी हाँ बाजी। जी। जो दूसरा तवारीख है, तवारीख किसके बाद आता है? आप पता है तवारीख? तारीख नहीं की जो बाजी। किताब, ओके मैं बताती हूँ। पहला तवारीख दूसरा 3 के बाद, दूसरा किंग 3 या हाँ किंग के बाद, ਜਾਂ किंग के फिर बाद, किंग के बाद, किंग के बाद हाँ जी, हाँ किंग जी, के बाद दूसरा, तो दूसरी हाँ बुक हाँ जी, हाँ जी, तवारीख ही है। अजरा। मिल गया? चले सुमीना, अगर आपको मिल गया तो आप पढ़ते हैं। पहला तवारीख, हाँ पहला तवारीख 5 बाब, उसकी पहली आयत से पढ़ना कि याकूब ने हाँ जी। उसको बरकत क्यों नहीं थी दी, रोबन को क्यों नहीं थी दी, जो उसका पलौठा था। राइट। और बाइबल हमें ये बताती है कि चाहे वो उसकी महबूबा ना हो, पहली जिससे पलौठा पैदा हो, फिर भी उसी को बरकत ਬਾਜੀ दें। ਮੈਂ ਚੈਪਟਰ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੈਸੇ। 5 चैप्टर, 5 बार ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। रोबन की उसकी नस्ल, पहली आयत है। हाँ उनकी पहली आयत। और इसराइल के पलौठे रोबन के बेटे, क्योंकि वो उसका पलौठा था, लेकिन इसलिए कि उसने अपने बाप के बछौने को नापाक किया था। उसके पलौठे होने का हक इसराइल के बेटे यूसुफ की औलाद को दिया गया, ताकि नस्बनामा पलौठेपन के मुताबिक ना हो, क्योंकि यहूदा अपने भाइयों से जोरावर हो गया और सरदार उसी में से निकला, लेकिन पलौठे का हक यूसुफ का हुआ। सो इसराइल के पलौठे रोबन के बेटे ये हैं। हाँ जी, राइट। बस ठीक है। हाँ जी, बस ठीक है। यानी इससे हमें पता चल रहा है कि लिया का बेटा जो था रोबन, जो पलौठा था, लेकिन उसको हक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? यानी उस रोबन को क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो उसने उसके यानी अपनी माँ के साथ ही उसने हमबिस्तरी की थी। इस वजह से यानी जो याकूब की बीवी थी, जो उसकी उसकी थी अ, लिया इसकी लिया का बेटा था रोबन। लिया हाँ, बेटा। हाँ। हाँ, हाँ, लिया का बेटा था रोबन ना। हम्म। तो जो याकूब था उससे प्यार नहीं करता था, वो प्यार राखल से करता था, जिससे जो यूसुफ पैदा हुआ था। तो उसने याकूब ने जब बरकत दी, हम अगर पैदाइश 49 चैप्टर और उसकी 3 से 4 आज पढ़े तो उसमें हमें सॉरी नहीं किस में था 22 आयत में कि यूसुफ को उसने बरकत दी। हाँ, कि यूसुफ जो है वो फलदार है, यूसुफ जो है वो उससे तो याकूब ने जो अपनी महबूबा थी कह लें, उसके बेटे को पलौठे का हक दिया। पर हमें वजह भी पता चल रही है कि क्यों उसने पलौठे का हक जो है वो यूसुफ को दिया था, यानी अपनी जो महबूबा थी उसकी बीवी उसके बेटे को दिया था। यूसुफ जो था उसमें से पलौठा था, लिया राखल में से पलौठा था। तो इसने याकूब ने उसको एक किस्म की जो बरकत थी वो दी थी। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि अगर यानी उसकी पहली बीवी है जिससे वो मोहब्बत नहीं करता और उसमें से उसका पलौठा बेटा पैदा होता है, लेकिन अगर वो इस तरह है यानी खुदावंद के उसके साथ नहीं चल रहा या खुदावंद के हुक्मों को वो तोड़ रहा है, या तो फिर जो पलौठे का हक है वो उसको मिलता है, या जो जो उसकी महबूबा है उसके बेटे को। तो हम ये देखते ही हैं कि जो यूसुफ था वो खुदावंद के साथ-साथ चलता रहा। खुदावंद के यूसुफ की स्टोरी आप सबको ही पता है ना? तो रोबन का भी हमें पता है कि हमने उसके बारे में थोड़ा सीखा भी था, और वही रोबन का कबीला जो था, वो हमने देखा कि वो यरदन के पार ही रह गया था।
है ना। तो इसलिए अगर इस तरह के रवैये हैं या इस तरह का है जो, लेकिन उसका पलौठे का हक है, तो फिर हम देखते हैं कि ये बाइबल ही हमें बताती है कि जो फिर महबूबा है, जो दूसरी बीवी है, यानी उसकी, तो उसको हक जो है वो मिल जाता है। फिर हम जो एक और भी जगह है, चलें, लेकिन इससे हमें ये पता चल रहा है कि खुदावंद हमें सिखा रहा है कि जो पलौठे का हक है वो बेशक पलौठे को ही मिलना चाहिए, लेकिन अगर वो खुदावंद के साथ वफादारी से नहीं चल रहा, जिस तरह याकूब का भी हम देखते हैं कि असो बड़ा था, पलौठा था, लेकिन उसको खुदावंद का या एक उसके साथ उसका रिश्ता खुदावंद के साथ अच्छा नहीं था, गहरा नहीं था, तो पलौठे का हक जो था वो याकूब को मिला था रूहानी तौर पे। बिल्कुल उसी तरह हम देख रहे हैं कि यूसुफ को पलौठे का हक मिला है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर हम देखें कि इसराइल जो है, इस्राएली कौम जो है वो पलौठे है, वो पलौठा बेटा है खुदावंद का। लेकिन हम जो हैं इस्राएली रूहानी तौर पे हमें वो पलौठे का हक जो है वो मिला है, क्योंकि हम जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है, और हम जो हैं वो उस नए यरूशलेम में उस तख्त तक हमारी जो रसाई है खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खून के वसीले से करा दी है। तो इसलिए अब हम जो हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, खुदावंद यीशु मसीह को रिजेक्ट किया था, वो हालांकि पलौठा है, इस्राएली कौम जो है, लेकिन खुदावंद जो हम जो रूहानी तौर पे हैं, हमें वो हक जो है या हमें जो वो रूहानी बरकतें हैं वो मिली हैं या मिलेंगी अभी, जब हम वहां तक पहुंचेंगे, उस तख्त तक खुदावंद यीशु मसीह के साथ जाके बैठेंगे। और जो इसराइली कौम है, जो यहूदी हैं, वो हमने, आप सबको शायद याद हो जो पुराने हैं, कि हमने सीखा था कि जो पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन हैं वो तख्त के आगे होंगे, लेकिन जो खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है, जो उसके खून से खरीदी हुई है, जो उसकी तरह है, जो खुदावंद यीशु मसीह की तरह है, यानी वो रूहानी जो बरकतें हैं, उनको हक जो है वो पलौठे का दिया गया है, वो तख्त पे जाके बैठेंगे। और जो इसराइली जिस्मानी तौर पे हैं वो तख्त के आगे खड़े होंगे। तो इसलिए इससे भी हम देखते हैं कि पलौठा जो है, पलौठे का हक जो है वो किसको मिलता है। तो इसलिए हम जो हैं रूहानी तौर पे, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो जी उठने वालों में पलौठा है, और हम जो हैं कलीसिया में, यानी हम पलौठे होंगे, यानी पूरी दुनिया में जो आपको पता है जो कलीसिया है खुदावंद यीशु मसीह की, जो खुदावंद यीशु मसीह पे कह लें कि ईमान रखती हैं, भरोसा रखती हैं, या पाक उस तरह चल रही हैं पाकीज़गी में, वो उनको पलौठे का हक जो है वो मिलेगा। यानी पहला फल हमें कहा गया है ना, तो वो आपको पता है वो पलौठे का हक है। तो इसलिए हम जो हैं रूहानी तौर पे यानी वो पलौठे का हक जो है वो पाएँगे, अगर हम उस तरह तैयार हो रहे हैं। तो इसलिए ये अ, जैसे कह लें कि ये 2 बीवियों का जो पलौठे का हक है, वो रूहानी तौर पे हमें पता चल रहा है कि वो किसको मिलेगा, है ना? तो इसलिए हम जो हैं रूहानी तौर पे पलौठे का हक जो है वो पाएँगे, और हमें ही वो रूहानी बरकतें जो हैं, जिस तरह ये नेमतें जो हैं, वो खुदावंद जो है, जिस तरह हम अब कह रहे हैं कि पाक रूह से हमें वो भर रहा है, पाक रूह की नेमतें जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में जो रूहानी तौर पे इसराइल है, उनकी ज़िंदगियों में काम हो रहे हैं, है ना? तो इसलिए हम रूहानी तौर पे पलौठे का जो हक है वो पा रहे हैं। तो हम जो दूर के थे अब नज़दीक हो गए, हम जो दुनिया में से हमें यानी चुना है खुदावंद यीशु मसीह ने। तो इसलिए ये हमें याद रखना है कि हम जो हैं उम, पलौठे हैं रूहानी तौर पे। और फिर ये हम दूसरी जो 18 आयत है उसमें देख रहे हैं कि ज़िद्दी और गर्दनकश बेटे की बात हो रही है। तो इसमें भी हम देखते हैं कि खुदावंद जो है वो क्यों फैमिलियों पे
हस्बैंड पे बात करता है, यानी शौहर पे बात कर रहा है, बीवियों की बात कर रहा है, बेटे की बात कर रहा है, क्योंकि खुदावंद जो है एक जैसे कह लें फैमिली जो है अ, वो बनाता है। जिस तरह मियाँ बीवी को बनाया और आगे आदम और हवा के बच्चे पैदा हुए, तो खुदावंद जो है वो सब रिश्तों के बारे में हमें बता रहा है, हमें समझा रहा है ना? और सबकी क्या-क्या एक ड्यूटी है या क्या-क्या हमें करना चाहिए, वो खुदावंद जो है हमारे साथ बातचीत कर रहा है। और ये जो बेटे का है, ये ख़ास तौर पे हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, यहाँ पे खुदावंद रूहानी तौर पे हमें बता रहा है, या रूहानी तौर पे एक जिस तरह उसमें भेद था, मियाँ-बीवी में एक भेद था और बेटे में भी एक भेद था। क्योंकि क्या है, जो बेटे-बेटियाँ हैं, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह क्या है, वो बेटा है खुदावंद बाप का, है ना? तो हम भी जब हमें उसने क्या किया, बेटे होने का हक जो है बख्शा खुदावंद यीशु मसीह ने। तो हम ही वो पलौठा हैं या हम ही वो बेटा हैं, अगर हम खुदावंद यीशु मसीह में जब आ जाते हैं, तो उसने क्या किया, हमें एक बाप कहने का हक जो था खुदावंद बाप को, वो बख्शा खुदावंद यीशु मसीह की। इसीलिए खुदावंद जो है वो शुरू से बेटों की जैसे कह लें या बेटे के ऊपर बहुत ध्यान से हमें मिसाल में भी मिलता है कि सुलेमान बादशाह ने बेटे पे बात की कि बेटे की उस रात में तरबियत कर जिस राह में उसको चलना है, या ये जो भी वो उसको सिखा रहा था, बता रहा था उसमें, तो वो इसलिए कहा था कि हम क्या हैं, खुदावंद के बेटे बेटियां हैं, और हम जो हैं वो एक दुल्हन की मानिंद भी तैयार हो रहे हैं, और हम बेटे की मानिंद खुदावंद यीशु मसीह की मानिंद हम तैयार हो रहे हैं, जो कि हमें पर्दे के अंदर तक लेके जाता है। इसलिए ये हम सबको जानना ज़रूरी है कि अगर हमारे अंदर इस तरह की बातें हैं, इस तरह के हम ज़िद्दी हैं, हम गर्दनकश हैं, तो इसका मतलब है कि हम खुदावंद के बेटे-बेटियाँ नहीं बन सकते। इस तरह अगर हमारी किरदार हैं, तो हम अ, खुदावंद के बेटे-बेटियाँ नहीं बन सकते, हम खुदावंद यीशु मसीह की मानद नहीं बन सकते, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सारी जो फरमाबरदारियाँ हैं, वो वफ़ादारियाँ जो हैं, वो जो बाप की कामिल मर्ज़ी है, उसको उसने पूरा करके दिखाया, और अगर हम भी उसी तरह कर रहे हैं, तो फिर उसके बेटे-बेटियाँ कहला सकते हैं। लेकिन अगर हम ज़िद्दी हैं, अगर हम गर्दनकश हैं, अगर हम उस तरह खुदावंद की पाक मर्ज़ी पे नहीं चल रहे, तो इसका मतलब है फिर हम बेटे-बेटियाँ उसके नहीं बन सकते, है ना? तो इस आयत से हमें ये पता चल रहा है कि जिस तरह अगर हम पढ़ें कि 19 आयत में लिखा है कि अगर वो गर्दनकश है, अगर वो बेटा ज़िद्दी है, तो उसको क्या करें, उस जगह के फाटक पे ले जाएँ, दरवाज़े पे ले जाएँ। अगर हमारे अंदर जैसे कह लें हम खुद या हमारे बच्चे इस तरह हैं, तो फाटक क्या है, दरवाज़ा कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। हम जब उसके पास जाते हैं, हम जब उसको अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, उस दरवाज़े से दाखिल होते हैं, तो हमारे अंदर से ये जो एक हम यानी बागी हैं, हम गर्दनकश हैं, हम ज़िद्दी हैं, हम ढीठ हैं, हमारे अंदर ये जो कह लें गंद जो है भरा, हम किसी की नहीं सुनते, हम नाफ़रमान हैं, हम हुक्मों को तोड़ने वाले हैं। लेकिन जब इस दरवाज़े से दाखिल होंगे, जब खुदावंद यीशु मसीह में दाखिल होंगे, तो हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं, वो तब्दील हो जाएँगी। हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह की मानद बन जाएँगी। इसीलिए बार-बार हमें, या मैं आप कह लें, इस बात पे मैं ज़्यादा ज़ोर देती हूँ कि हमें मसीह की मानद बनना है। जिस तरह हम देखते हैं कि वो फाटक पे उसको लेके आए थे, उस बुज़ुर्गों के सामने लेके आए थे, और उसको सज़ा मिली थी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, जब हम उसमें आ जाते हैं, उसको अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तो क्या हो जाते हैं, हम तब्दील हो जाते हैं। हमारी पुरानी इंसानियत जो है, वो वहीं पे कह लें ख़त्म हो जाती। जो हमारी सज़ाएँ थी, जो हमारी जो बगावत थी, या हमारा जो ढीठपन था, हम जो ज़िद्दी थे, हम किसी चीज़ पे अड़ जाते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह में जब हम आ जाते हैं, तो हमारे अंदर से वो पुरानी इंसानियत निकल जाती है, और हमारी जो सज़ा थी मौत की,
जिस तरह इस बेटे को क्या किया जाता था, संसार किया जाता था। उस बेटे को क्या किया मार दिया जाता था, है ना? और यानी पत्थरों से संसार कर दिया जाता था और उसको मार दिया जाता था। तो हमारी जो सज़ाएँ थी, वो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली, है ना? तो इसलिए वो दरवाज़ा जो है, जब हम उसके पास जाते हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह के को अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं, जब उसका किरदार जो है, उसकी फ़र्माबरदारियाँ, उसकी जो ताबेदारियाँ हैं, वो हमारी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर देती हैं, तो इसका मतलब है कि फिर हम अ जो है उस खुदा बाप के बेटे-बेटियाँ कहलाने के लायक बन जाते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर अभी भी मसीह को कबूल करने के बाद भी, उस दरवाज़े में दाखिल होने के बाद भी, अगर हमारे अंदर वही पुरानी इंसानियत है, वही झगड़े हैं, वही माँ-बाप की हम नाफ़रमानी करते हैं, उनका कहना नहीं मानते, उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, उनको आगे से जवाब देते हैं, है ना? और जिस तरह हमने उसमें 10 हुक्मों में भी सीखा था कि वो जो हाम था, नूह का बेटा, वो अपने बाप पे हँसा ही था और वो लानती ठहरा था। तो इस तरह अगर हम भी अपने माँ-बाप के साथ, यानी जो ज़मीनी माँ-बाप हैं या हमारा जो आसमानी बाप है, खुदावंद बाप, उसकी इसी तरह नाफ़रमानियाँ कर रही हैं। ये तोरा में क्या हमें कानून सिखाए जा रहे हैं, हमें हुक्म दिए जा रहे हैं, हमें रहने-सहने के जो सारे तरीके हैं वो बताए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम इन पे अमल नहीं करते, इनको किसी खातिर में नहीं लाते और हम खुदा की भी नाफ़रमानी कर रहे हैं और हम अपने जो ज़मीनी माँ-बाप हैं, उसकी भी हकारत कर रहे हैं, उनको भी अ, उनकी भी हुक्म नहीं मान रहे। तो इसलिए इसका मतलब है कि फिर हम उस नए यरूशलेम में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि नए यरूशलेम में कौन दाखिल होंगे? खुदा के बेटे-बेटियाँ, ये याद रखें। इसीलिए बेटे के बारे में हमें जो है वो सिखाया जा रहा है कि अगर उसका बेटा इस तरह है का है, तो वो इसका मतलब है उसकी सज़ा तो मौत है। वो कैसे उसमें दाखिल हो सकता है न्यू यरूशलेम में? क्योंकि न्यू यरूशलेम में, मुल्क कनान में, वो लोग दाखिल होंगे जो यीशु मसीह की तरह हैं। जो दुल्हन है वो बिल्कुल उसकी तरह होगी, है ना? यानी वो फर्माबरदारी में, ताबेदारी में ज़िंदगी गुज़ार रही होगी। तो इसलिए यहाँ पे हम इस चैप्टर में या इस वर्सेस में जो है वो देख रहे हैं कि अगर हम गर्दन कश हैं, अगर हम ढीठ हैं, ज़िद्दी हैं, तो हमारी सज़ा जो है वो मौत है। तो फिर हम कह लें कि ये ना अपने मन में बिठा के बैठे हों कि जब रैप्चर होगा तो हम भी हवा में उड़ेंगे, हम भी आसमान पे जाएँगे। तो इसलिए हम जो हैं अगर चाहते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो हम हवा में को उड़कर इस्तकबाल करने वाले हैं, तो हमारे अंदर ये जो रवैये हैं, ये जो आदतें हैं, ये जो इस तरह के हमारे हुक्मों को तोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि 10 हुक्मों में हमें मिलता है कि माँ-बाप की इज़्ज़त करना, है ना? माँ-बाप का कहना मानना, उनकी फर्माबरदारी में चलना। लेकिन अगर बेटा इस तरह कर रहा है तो उसकी सज़ा क्या है? मौत है। और खुदावंद ने कहा कि उस बुराई को ख़त्म करने के लिए उसको क्या करना है? संसार कर देना, पत्थरों से मारना। तो इसलिए अगर हम मसीह में आ गए हैं, अगर हम मसीह के साथ चल रहे हैं वफ़ादारी से, तो ये हमारे अंदर से ये जो अ ये रवैये हैं वो निकलने चाहिए। अगर नहीं निकल रहे हैं अब तक, तो इसका मतलब है कि फिर हम उस तरफ जाने की तैयारी जो है वो नहीं कर रहे, है ना? हम खुदावंद अ, के उस तरह फर्माबरदारी में नहीं चल रहे और ये ज़रूरी है। फिर हम देख रहे हैं कि जो गुनाह करता था उसके जो कत्ल के अ, होता था, उसको दरख्त के ऊपर टंगा दिया जाता था, उसकी लाश को, है ना? लेकिन लिखा है कि रात होने से पहले, यानी उसकी लाश को उससे उतार दिया जाता था। इसी तरह हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह को भी जब सलीब पे चढ़ाया गया, तो वो बेगुनाह था और उसकी लाश को दरख्त के ऊपर या उस लकड़ी के ऊपर टंगाया गया था। लेकिन रात होने से पहले
یعنی خداوند یسوع مسیح کی جو لاش تھی اس کو اتار لیا تھا، ہے نا، اور اس کو قبر میں رکھ دیا گیا تھا۔ تو کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، ہمیں اس میں بھی پڑھا تھا گنتی کی کتاب میں بھی، کہ اس سے ملک کیا ہے، ناپاک ہوتا ہے۔ لیکن جب اس جو قاتل ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا تھا، ہماری ساری لعنتیں اپنے اوپر لے لی تھی، ہمارے سارے جو گناہ تھے اپنے اوپر لے لیتے، اور وہ لعنتی ہماری خاطر بن گیا تھا، ہے نا۔ تو اس لیے وہ لعنتی کی موت جو تھا، خداوند یسوع مسیح ہمارا مرا تھا۔ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ اگر اس کی جان نہیں نکلی ہوتی تھی تب بھی سپاہی کیا کرتے تھے کہ ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ توڑ دیتے تھے، تاکہ اس کی جان جو ہے وہ جلدی نکل جائے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح وہ پہلے ہی یعنی شام ہونے سے پہلے ہی ہمیں پتا ہے کہ ان کی جان جو تھی وہ نکل گئی تھی، ہے نا۔ اس لیے ان کی جو ٹانگیں تھیں وہ نہیں توڑی گئی تھی، لیکن وہ اس طرح کا دستور تھا کہ وہ شام ہونے سے پہلے اس لاش کو اس کے اوپر سے اتار لیتے تھے، لکڑی کے اوپر سے، وہ صلیب کے اوپر سے۔ تو اس لیے خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر جو تھی وہ لعنتیں جو تھیں وہ اپنے اوپر لے لی، وہ سارے گناہ تھے جو ہم نے کیے ہوئے تھے، جو ہم نے یہ جس موت ہم نے مرنا تھا، وہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لی تھی، تاکہ ہم جو ہیں یہ اس طرح کے کیا ہماری روح، پالوس رسول کہتا ہے کہ ہماری روح، بدن اور جان یعنی پوری جیسے کہہ لیں پاک اور صاف ہو کے اس خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی میں خداوند یسوع مسیح کی طرح ہم بنیں، تاکہ ہماری روح، بدن اور جان پاک ہو۔ کیونکہ اگر ہم پاک نہیں ہیں، ہم اس بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس خاندان میں جو روحانی خاندان ہے، یعنی خداوند باپ، خداوند یسوع مسیح، خداوند پاک روح، ایک فیملی کی صورت میں ہم اس تک پہنچے، تو ہمیں یہ جو خدا نے ایک خاندان بنایا ہے جس کے بارے میں وہ سکھاتا ہے ہمیں بار بار، ہے نا، کہ باپ کی کیا ذمہ داری ہے، بیوی کی کیا ذمہ داری ہے، بیٹے کی کیا ہے۔ ہمیں سب کچھ جو خداوند ہے وہ پرانے عہد نامے میں بھی سکھایا، اور نئے عہد نامے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹے کی کیا ہے، اس کی فرما برداری میں چلنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے لکھا ہے اس کے بارے میں کہ اس نے مصیبتیں سہ کے خداوند کی کیا کی، اپنے باپ کی فرما برداری میں، یعنی ہم جب فرما برداری میں چلتے ہیں، اپنے ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں، تو اس میں ہمیں بہت ساری کہہ لیں دکھوں میں سے، تکلیفوں میں سے، سفرنگ میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہم ایسے ہی کسی کا کہنا جو ہے وہ نہیں مان سکتے، ہے نا۔ اس میں سے کچھ نہ کچھ ہمیں قربان کرنا پڑتا ہے، ہو سکتا ہے اپنی نیند قربان کرنی پڑتی ہے، ہو سکتا ہے ہمیں اپنے روپے پیسہ کسی طریقے سے ان پہ لگانا پڑتا ہے نا، یا ہم اپنے آرام کو اپنے ماں باپ کے لیے، یعنی کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح خداوند یسوع مسیح نے تو ہمارے لیے کہہ لیں کہ بہت کچھ کیا اپنے باپ کی فرما برداری میں، اس کی پورا کرنے کے لیے اپنی جان دی، دکھ سہے۔ تو اسی طرح اگر ہم بھی خداوند یسوع مسیح کی طرح بیٹے بیٹیاں ہیں خدا باپ کے، تو ہمیں اپنے ماں باپ کے بھی دنیا میں رہتے ہوئے بھی قربانیاں جو ہیں وہ دینی پڑیں گی، اور اپنا باپ جو ہے آسمانی، اس کے لیے بھی قربانیاں جو ہیں وہ دینی پڑے گی فری میں۔ جیسے کہہ لیں کہ وہ نجات ملی ہے، لیکن اس پہ عمل کرنے کے لیے ہمیں مشکلوں میں سے، پریشانیوں میں سے، دکھوں میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو یہ اگر کہیں پہ ایسی آپ کو پتہ اسٹڈی مل رہی ہے کہ سب کچھ فری میں مل رہا ہے، فری میں کچھ نہیں مل رہا، ہمیں سفرنگ میں سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارا استاد جو تھا، ہمارا خداوند یسوع مسیح، وہ دکھوں میں سے، تکلیفوں میں سے گزرا۔ تو ہمیں بھی یہاں پہ جس طرح ایوب نبی بھی کہتا ہے کہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں، دکھوں کے لیے پیدا ہوئے یا تکلیفوں میں سے، اس میں سے داؤد بھی ہمیں یہی بتاتا ہے۔ تو ہمیں یہ گزرنا پڑتا ہے زمین پہ، لکھا ہے کہ دکھ سہتے ہیں، لیکن ہمیں آرام جو ہے آسمان پہ ملے گا۔ لیکن کچھ لوگ کہہ لیں پاسٹر یا چرچز میں یہ بتایا جا رہا ہے
कि हम मसीह में आ जाते हैं तो शायद हम सब पता नहीं सब कुछ अब खत्म हो गया है, दुख मुसीबतें हैं, है ना? लेकिन हम जब वफादारी में चलते हैं, ताबेदारी में चलते हैं, फरमाबरदारी में चलते हैं, तो ज़रूर जिस तरह बीवियाँ भी हैं जब अपने हस्बैंड की फरमाबरदारी में चलती हैं, तो उन्हें भी बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। दुःख में से, दर्द में से, तकलीफ में से गुज़रना पड़ता है ना? बिल्कुल इसी तरह बेटे-बेटियों को भी गुज़रना पड़ता है ना? तो खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और फज़ल दे कि हम फरमाबरदारी में चलें, ताबियादारी में चलें और अपना हक जो है जो पलोठे का हक है वो ना खोएँ, क्योंकि हम रूहानी तौर पे जो कलीसिया है वो पहला फल हमें कहा गया है ना? हम पलोठे हैं। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। बैक टू सोनिया। हाँ जी, praise the Lord. Thank you, sister. God bless you. Nice message. खुदावंद ने ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, praise the Lord. और इसकी लास्ट प्रे करेंगे सिस्टर सराफिन ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। सिस्टर सराफिन जी। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, praise the Lord. ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ। ਸਰਾਫਿਨ ਬਾਜੀ, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਪੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਜੇ ਆ, ਵਿਜੇ ਪਾਸਟਰ। विजय ਵਿਜੇ, ਹਾਂਜੀ ਵਿਜੇ। सिस्टर जी मेरे लिए भी आपने प्रे करनी है कि मुझे जॉब मिल जाए अच्छी सी। सिस्टर शीन, ठीक। कदूस 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 मेहरबान जलाल खुदा, अजीब मशीर खुदाए कादर अब्दर के बाप सलामती के शहजादे, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, पत्रश गूबर जहन्ना के जिंदा खुदा, आसमान आपका तक ज़मीन आपके पाँव की चौकी, अव्वल फर मैं के इब्तिदा और आखिर है। यीशु जी तेरा शुक्र करते हैं दिल की तागनाइयों से खुदा, आपके कदमों में सर नगू है यहोवा यरी। ए खुदा हर एक बात के लिए खुदा शुक्रगुजार, इंसानों के लिए, ज़िंदगी की दी हुई तमाम नेमतों बरकतों के लिए शुक्रगुजार है। खुदा आज की प्रस्तिश के लिए शुक्रगुजार हैं, आपके चरणों में हाजिर होने के लिए शुक्रगुजार हैं। ए कदूस मेहरबान जलाली खुदावंद आपके तख्त के लिए शुक्रगुजार हैं खुदावंद यीशु जी। ए खुदावंद हम जितना भी शुक्र करें उतना ही थोड़ा है खुदावंद। ए खुदावंद तेरी अनाइंटिंग के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए शुक्रगुजार है यहोवा यरी। आज के अच्छे मैसेज के लिए शुक्रगुजार है कि खुदावंद हमें वफादार बनना है यहोवा यरी। ए यीशु जी, ए खुदावंद हम वफादार बने जैसे ए खुदावंद तू वफादार था। ए खुदावंद तूने हर काम में वफादारी की है खुदावंद यीशु जी, हमें भी वफादार बना यहोवा यरी। ए खुदावंद बाजी को ए खुदावंद सर से लेकर पांव के तलवे तक तेरे पाक लहू में छुपाते हैं खुदावंद यीशु जी। ए खुदावंद तू उनकी बड़ी सहायता कर, ताकि ए खुदावंद जो बातें हैं खुदावंद हम तक वो पहुंचा रही है खुदावंद तू उनकी और है खुदावंद मदद कर। है खुदावंद तेरा गहरा मसा है खुदावंद उन पर मांगती हूँ यहोवा यरी। तो उनकी कुंभक बन, उनकी सिपर बन, उनकी ताकत बन, उनका भरोसा बन यहोवा यरी। उनकी फैमिली के एक एक मेंबर को है खुदावंद तेरे पाक लहू में छुपाती हूँ, खुदावंद तेरे पाक लहू में छुपा देती हूँ खुदावंद। भाई जावेद की खिदमत को है खुदावंद तेरे सुंदर कदमों में लाती हूँ खुदावंद यीशु जी। है खुदावंद बच्चों को है खुदावंद नाम बनाम बरकत दे है खुदावंद यीशु जी। है खुदावंद तेरा खास है खुदावंद फजल वाला हाथ उन पर हमेशा बना रहे है खुदावंद। उनके घर पर है खुदावंद तेरा फजल वाला हाथ बना रहे है खुदावंद यीशु जी। घर की दीवारों पर है खुदावंद बरे का खून मांगती हूँ। है खुदावंद खिड़कियों पर है खुदावंद यीशु जी। एक एक जगह पर है खुदावंद हवाओं पर, फजाओं पर बरे का खून मांगती हूँ खुदावंद यीशु जी। है खुदावंद उनकी खिदमत को बढ़ा, और है खुदावंद जो वो है खुदावंद काम कर रहे हैं खुदावंद यीशु जी, तो उनकी मदद कर। है खुदावंद हम है खुदावंद जो है खुदावंद इस रूप में है खुदावंद काम हो रहा है खुदावंद तू उनकी मदद करे खुदावंद, उनकी सहायता करे खुदावंद। जो बाजी को दर्द है उसको भी यीशु के नाम से डांटते हैं, हुक्म देते हैं वो जल्द से जल्द यीशु के नाम से जाती रहे। ऐ खुदावंद यीशु जी तेरी बंदी है खुदावंद, तेरी खून खरीदी है खुदावंद यीशु जी। तेरा गहरा मसा इन पर मांगते हैं खुदावंद यीशु जी। ऐ खुदावंद इसी तरह है खुदावंद अपने ग्रुप के एक एक मेंबर को है खुदावंद तेरे पाक परों में छुपाते हैं खुदावंद, तेरे पाक चरणों में ले आते हैं खुदावंद यीशु जी। ऐ खुदा
खुदावन तेरा फजल वाला हाथ सब पर बना रहे है खुदावन यीशु जी। हमें मसाशुदा कान दे है खुदावन, हम सुने तो रूह की हदायत के मुताबिक है खुदावन, तेरे पाक कदमों में झुके रहे हैं खुदावन यीशु जी। हमारा झुकना तुझे पसंद आया है खुदावन यीशु जी। है खुदावन तू हमारा जलाली खुदा है खुदावन, जब हम तेरे कदमों में आते हैं तो ए खुदावन जो मिन्नत और फरियाद इल्तिजा तेरे आगे रखते हैं ए खुदावन तू उसको सुनता है खुदावन यीशु जी। ए खुदावन यीशु जी तेरे कदमों में झुके हुए हैं खुदावन, हम सब का खुदावन सर तेरे कदमों में झुके हुए हैं खुदावन यीशु जी। ए खुदावन हमारी इल्तिजाएं मना जाते हैं तेरे हजूर बाखूर की महानत पहुंचे है खुदावन, तेरे तख्त के लिए शुक्रगुजार है, तेरी मौजूदगी के लिए शुक्रगुजार है यहोवा यरी है खुदावन यीशु जी। तुझसे मिन्नत करते सिस्टर शीना के लिए है खुदावन, जिन्होंने अपनी रिक्वेस्ट रखी है खुदावन तेरे कदमों में है खुदावन, हम सब ग्रुप मेंबर मिलकर है खुदावन आपसे मिन्नत करते हैं खुदावन यीशु जी। ए खुदावन वो जॉब जो है खुदावन उन्हें चाहिए है खुदावन, उनकी जरूरत है खुदावन तू उनको पूरा कर है खुदावन यीशु जी। ए खुदावन उनकी जॉब के जरिए है खुदावन खोल दे है खुदावन यीशु जी। उन पर तेरा गहरा मस्सा चाहते हैं खुदावन यीशु जी, और तेरी बंदी है खुदावन उनकी स्टडी में उनके शामिल हाल है ना ए खुदावन यीशु जी। ए खुदावन उनको सर से लेकर पांव के तलवे तक तेरे पाक लहू में छुपाते हैं ए खुदावन यीशु जी। ए खुदावन तू उसके साथ हो है खुदावन यीशु जी। ए खुदावन उसकी राहों की हिफाजत और निगहबानी कर है खुदावन यीशु जी। उसकी है खुदावन हर एक काम में है खुदावन तेरी मदद चाहते हैं खुदावन यीशु जी। तुझसे मिन्नत करते हैं खुदावन, बरे का खून उस पर मांगते हैं खुदावन जो हमारे लिए बहाया गया ए खुदावन। इसी तरह है खुदावन पास्टर जी के लिए दुआ करते हैं खुदावन, जिन है खुदावन पास्टर विजय के लिए ए खुदावन उनको सर से लेकर पांव के तलवे तक तेरी पाक सलीब के नीचे लाते हैं ए खुदावन यीशु जी। उनको ए खुदावन जो बीपी हाई है वो यीशु के नाम से ए खुदावन कंट्रोल हो जाए ए खुदावन यीशु के नाम से वो जाता रहे है खुदावन यीशु जी। ए खुदावन दरे का खून उन पर मांगते हैं, वो तेरे मंसूब हैं खुदावन यीशु जी, तेरी खिदमत करते हैं खुदावन यीशु जी। ए खुदावन यीशु जी तू उन्हें बरकत दे, खुदावन उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उम्र की दराजी दे ए खुदावन यीशु जी। अपने बंदा को अपने नाम और अपने जलाल के लिए उठा खड़ा कर है खुदावन, सारा बीपी यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए, सारी टेंशनें परेशानियां मुश्किलें यीशु के नाम से जाती रहे हैं खुदावन यीशु जी। ए खुदावन तेरा बरे का खून उन पर मांगते हैं खुदावन, जो तूने कोड़े हमारे लिए खाए है खुदावन वो खून उन पर मांगते हैं खुदावन। तूने एक कम का 40 कोड़े हमारे लिए ए खुदावन खाए है खुदावन, वो कुदरत वाला खून है खुदावन उन पर मांगते हैं खुदावन यीशु जी। तूने बहाल कर रहम कर फजल कर माफ कर बहाल कर यहोवा यरी बहाल कर ए खुदावन। अपने बंदा को अपने नाम और अपने जलाल के लिए उठा खड़ा कर है खुदावन, सारा बीपी यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए खुदावन यीशु जी। ए खुदावन यीशु जी तूने बहाल कर रहम कर फजल कर माफ कर ए खुदावन। इसी तरह अपने ग्रुप के एक एक मेंबर को है खुदावन तेरे पाक परों में छुपाती हूँ ए खुदावन, खास कर है खुदावन दुआ करती हूँ सिस्टर सोनिया के लिए ए खुदावन, उनके बच्चों के लिए है खुदावन, भाई प्रिंस के लिए है खुदावन यीशु जी। उन्हें हर मुश्किल परेशानी से बचा के रखना है खुदावन, तेरे पाक रबीन का पैरा उनके चुगिर चाहती हूँ ए खुदावन। उनकी खिदमत की है खुदावन और उन्हें बढ़ा है खुदावन यीशु जी, हदूद को बढ़ा और है खुदावन उन बच्चों को है खुदावन, दरूद को सैमुअल को है खुदावन तेरे पाक परों में छुपा देती हूँ है खुदावन यीशु जी। ए खुदावन उनकी सारी है खुदावन टेंशन परेशानियां यीशु के नाम से जाती रहे ए खुदावन यीशु जी। तू उन्हें अपने नाम और अपने जलाल के लिए और इस्तेमाल कर है खुदावन यीशु जी। इसी तरह है खुदावन सिस्टर वफा के लिए है खुदावन, तुझसे मिन्नत करते हैं खुदावन, तुझसे ब्लेस कर है खुदावन यीशु जी, तो ब्लेस कर ए खुदावन यीशु जी। बरे का खून उन पर मांगती हूँ खुदावन, तू रहम से भरा तरस से भरा खुदा है ए खुदावन। तू अपनी बेटी पर अपने करम की निगाह कर यहोवा यरी है खुदावन। सारी ए खुदावन जो डॉक्टर कहते हैं खुदावन उनको यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं खुदावन, तू उन्हें ब्लेस कर खुदावन, तूने वादे का फर्जंद दे यहोवा यरी ए खुदावन। अपने ग्रुप के एक एक मेंबर पर है खुदावन बरे का खून चाहती है खुदावन। बाजी श्रेया के लिए है खुदावन तुझसे मिन्नत करती हूँ है खुदावन, उनकी खिदमत के लिए है खुदावन, सारा समर के लिए है खुदावन, सैट्रक भाई के लिए है खुदावन यीशु जी। इस पूरी फैमिली को है खुदावन तेरे पाक चरणों में लाती हूँ है खुदावन, तेरी पाक सलीब के नीचे लाती हूँ है खुदावन। खाली कब्र की कुदरत इन पर मांगती हूँ है खुदावन यीशु जी। ये
اے خداون ساری فیملی کو اے خداون تیرے برے کے خون میں چھپا دیتی ہوں، اے خداون ان کی خدمت کو اے خداون تیری قدموں میں لاتے ہیں خداون یسوع جی، سیٹرک بھائی کو اے خداون یسوع جی، اے خداون تو اپنے نام اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر یہوہ یری، اسی طرح سارا سمر کی اے خداون سٹڈی میں تو ان کے شامیوں حال رہے اے خداون یسوع جی، اے خداون انہیں روحانی طور پر بھی مضبوط بنا اور جسمانی طور پر بھی اے خداون ساری ہارمون کی ابنورملٹی یسوع کے نام سے جاتی رہے اے خداون یسوع جی، اے خداون برے کا خون ان پر مانگتے ہیں خداون ان کے گھر کے پر اے خداون ان کے دروازوں پر کھڑکیوں پر اے خداون ہواؤں پر فضاؤں پر برے کا خون مانگتے ہیں خداون باجی سریا کے آنے جانے پر اے خداون ان کی آمد و رفت میں اے خداون تو ان کا شامیوں حال رہنا یہوہ جری، اے خداون جہاں بھی وہ جائیں اے خداون ان کو تو اپنے نام اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا اے خداون، وہ تیری بندی ہے خداون یسوع جی، اسی طرح اے خداون اپنے گروپ کے ایک ایک ممبر کو اے خداون انجنا کے لیے دعا کرتے ہیں خداون یسوع جی، اے خداون اس جہاں اے خداون انڈیا میں جو وبا پھیلی ہے اے خداون انہیں محفوظ رکھنا ہے خداون یسوع جی نے محفوظ رکھنا ہے خداون یہوہ جری، اے خداون برے کا خون ان کے گھر کی جو گید مانگتی ہے خداون یسوع جی، اے خداون انہیں محفوظ رکھنا یہوہ یری، اے خداون تمام دنیا میں اے خداون یہ جو وبا پھیل رہی ہے خداون ان سے محفوظ رکھنا ہے خداون یسوع جی، اے خداون یسوع جی اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہوں اے خداون ان کو تیرے پاک صلیب کے نیچے لاتی ہوں اے خداون یسوع جی، اے خداون انہیں صحت و تندرستی دے اے خداون عمر کی درازی دے اے خداون یسوع جی، اے خداون سارا بیمار بہار اے خداون گلے خراب یسوع کے نام سے اے خداون نارمل ہو جائے خداون نارمل ہو جائے خداون یسوع جی، اپنے گھر پر اے خداون تیرا برے کا خون مانگتی ہوں، اپنے آپ پر اے خداون یسوع جی برے کا خون مانگتی ہوں، اے خداون اپنے جیون ساتھی پر تیرا برے کا خون مانگتی ہوں، اے خداون ہم وفادار بنے یسوع جی، تیرے وفادار بنے اے خداون تیرے احکام پر چلنے والے بن سکے اے خداون یہوہ جری، اے خداون جو تو ہمیں حکم دیے ہیں خداون ان پر ماننے والے بن سکے، ہم اپنے ماں باپ کے وفادار بنے یہوہ جری، اے خداون یسوع جی، اے خداون تیرے وفادار بنے اے خداون یسوع جی، اے خداون ہمارے ساتھ جو بھی جانے جڑی ہیں ان سب کے ساتھ اے خداون وفاداری کریں اے خداون یسوع جی، اے خداون یسوع جی تجھ سے منت کرتی ہوں اے دعا کے لیے اے خداون چھوٹی بچی کے لیے اے خداون یسوع جی، تو اسے اپنے نام اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر اے خداون اس کے پیٹ کی ساری درد یسوع کے نام سے جاتی رہے، اپنے گروپ کے ممبرز کے لیے اے خداون جن جن کے نام میں نے نہیں بھی لیے ان کو بھی تیری پاک صلیب کے نیچے لاتی ہوں اے خداون، ساری ٹینشنیں ساری پریشانیاں یسوع کے نام سے جاتی رہیں، سب کچھ تیرے قدوس اور جلالی نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ آمین۔ اب ہمارے خدا ان کا فضل، اس کی تسلی، اس کا اطمینان ہم سبوں کے ساتھ ہمیشہ تک ہوتا رہے جب تک کہ خدا یسوع مسیح آنے جاتا ہے۔ آمین۔ God bless you۔ Hallelujah۔ جی شینا آپ ٹیسٹ منی دینا چاہتے ہیں؟ Praise the Lord۔ جی آنٹی جی میں ویٹ کر رہی تھی کہ شاید آپ نے بولنا ہے تو آپ جب ڈن ہو جائیں گی۔ پریز دا لارڈ سب کو۔ اور سوری میں تھوڑا لیٹ ہوگی، میں یونیورسٹی سے جیسے آئی ہوں مجھے سیرش کا میسج میں نے دیکھا، میں نے فوراً سے آ کے نا جوائن کر لیا۔ اور آپ سب کو میں نے بتانا تھا کہ فرائیڈے کو دوپہر کو میرا ویزا آ گیا تھا، تو سیٹرڈے کو میں نے اپنی فلائٹ لی اور 12 بجے کی فلائٹ سے میں یہاں آ گئی UK میں۔ اور تھینک یو سو مچ آپ سب کو جنہوں نے میرے لیے پریئرز کی، اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی میرے لیے۔ آئی واز ورڈ اباؤٹ دیٹ جب تھوڑا سا لیٹ ہوا، لیکن آپ سب نے اتنی پرے کی، آنٹی نے مجھے کاؤنسلنگ بھی کرتی رہی، تو خدا ان کا شکر ہے کہ آج میں اپنی یونیورسٹی بھی گئی تھی اور میرا سارا پروسیس ڈن ہو گیا۔ بس میں اپنی کلاسز کے ساتھ جاب کی لک آفٹر کر رہی ہوں، تو مجھے ایمان ہے کہ مجھے یہ بھی خدا اگر یہاں تک جس نے مجھے لے کر آیا، میرا سارا کچھ کیا، تو اس کو مجھ سے زیادہ فکر ہے کہ آگے بھی میں نے کرنا ہے۔ تو تھینک یو سو مچ، اور پریز دا لارڈ، خدا ان کا شکر ہو کہ اس نے مجھے اتنی برکتیں دی ہیں۔ اور اس پورے پروسیس میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میں نے یہ جنوری میں اسٹارٹ کیا تھا، اور مئی میں جا کے، کیونکہ یہ تھوڑا لانگ پروسیجر ہوتا ہے، تو ہر سٹیپ پہ جب تک میں نے کچھ کرتی رہی ہوں، تو ہر دن مجھے خدا نے ایک نیو ٹیسٹ منی دی۔
جب میرا انٹرویو تھا تب بھی، کیونکہ میرا اسٹڈی میں گیپ بھی تھا، تب بھی کلیئر ہو گیا میرا. اور اس کے علاوہ میرا آئلٹس کلیئر ہو گیا. اور حالانکہ مجھے اتنا کانفیڈنٹ نہیں تھا خود پہ، لائک آئی واز اے برائٹ اسٹوڈنٹ، بٹ جب آپ گیپ کے بعد پڑھتے ہو تو آپ کو کہیں نہ کہیں تھوڑا ڈر تو لگتا ہی ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے ہو نہیں ہو. لیکن میری یونیورسٹی کی لاسٹ ڈیٹس تھی اور میرے انٹرویو وہ آئلٹس کا رزلٹ نہیں تھا ابھی تک. تو میں نے آنٹی سے پرے کروا کے، جیسے میں نے اب پرے آنٹی نے بند مطلب ختم ہی کی ہے، تو مجھے ایک دم سے نوٹیفیکیشن ملا. میں نے اپنی ٹیسٹ میں وہ بھی شیئر کی تھی. تو ہر چیز خدا نے وقت پہ کی ہے. اور ابھی میرا ویزا بھی لیٹ ہوا تھا تو میں پریشان تھی، اور میں نے آنٹی کو کال کیا تو آنٹی کہتی کوئی بات نہیں، اگر ڈیلے بھی ہے تو کوئی بات نہیں. لیکن میں نے دعا میں خدا کو کہا کہ خدا فرسٹ ڈے ہے منڈے کو میں نے وہاں پہ فزیکل کلاس لینی ہے، میں آن لائن نہیں لینا چاہتی. تو ایک دن ٹھیک ہے، ایک دن پہلے مجھے میرا ویزا مل گیا، مطلب 2 دن پہلے. تو خدا کا شکر ہو، وہ ہر چیز آپ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. اور مجھے یقین نہیں ہوتا ہے کہ خدا مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے. جب مجھے ویزا ملا اس وقت تو مجھے نا کچھ فیل نہیں ہوا، لیکن جیسے جیسے وہ آگے میں نے پرے گھر آ کے کی نا، تو میری آنکھوں میں آنسو ہی تھے کہ خدا مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے. اور یہی ہے کہ جب ہم اپنا سب کچھ چھوڑ کے یسوع سے دل لگاتے ہیں تو وہ پھر ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر کرتا ہے. اور میں نے کبھی Hallelujah. سوچا Praise نہیں تھا کہ میں باہر آؤں گی لیکن خدا نے سب کچھ کیا. اور اسی دوران جب میں پرے کر رہی تھی دسمبر ٹو ٹل مئی، تو اس سے پہلے میرے بھائی کا اور میری ماما کا ہم نے ویزا اپلائی کیا، تب بھی ہم نے پرے میں رکھا ہوا تھا. تو خدا نے میرے بھائی کا، میری ماما کا اور بھائی کا پہلے ویزا لگا، اس کے بعد میرا، ہم تینوں کا UK کا لگا ویزا. اور خدا کا شکر ہے کہ ابھی میرا بھائی بھی یہاں پر ہے، ہی از ڈوئنگ اسٹڈیز اینڈ جاب، اور میں بھی یہاں پہ اسٹڈیز کر رہی ہوں. اور تھینک یو سو مچ. Praise مجھے God. سمجھ نہیں آ رہی میں کیسے گواہی دوں. اور میرا ایمان ہے کہ میں بہت جلدی اپنی نیو ٹیسٹمنی بھی شیئر کروں گی سب کے ساتھ. Hallelujah. Praise God. God bless you. ہاں جی. تھینک یو سو مچ آنٹی جی. آپ Praise بس مجھے ایسے ہی دعاؤں میں یاد رکھے سب. اور میں نے اپنی سسٹر سے بھی بات کی ہے، میں نے کہا تم نے بھی، ابھی تو وہ گھر پہ نہیں ہے تو میں نے اسے گروپ کا بتایا، تو وہ بھی اب میرے ساتھ جوائن کیا کرے گی گروپ کو. Praise God. جی خداوند آپ کو اور زیادہ برکت دے اور زیادہ اپنے میں بڑھائے، مضبوط کرے. اور آمین. آپ جہاں جہاں جاؤ خداوند کی گواہی دو کہ اس نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، آمین. کیونکہ اور ایک خداوند بات اور، اسی لیے یہ کرتا ہے کہ گواہی دی سوری میں جائے. آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، ہوں لیکن بولو. خدا نے مجھے اس گروپ میں روحانی طور پہ بڑی برکتیں دی ہیں. یہ چیزیں مجھے بعد میں ملی ہیں، پہلے مجھے اسپرچل تنگ روحانی آنکھیں بھی مجھے ملی. خدا نے پہلے مجھے اسپرچلی طور پہ بلیس کیا اور بعد میں مجھے یہ چیزیں ملنا شروع ہوئی. میں نے اسٹارٹنگ میں، آنٹی آپ کو یاد ہوگا، میں نے ٹیسٹ منی دی تھی کہ میں نے رویا دیکھی، جبکہ مجھے پہلے نہیں تھا. لیکن اب خدا کا شکر ہے کہ میں پرے کرتی ہوں، اور یہاں پر آ کے بھی میں نے اپنی پرے کی روٹین نہیں خراب کی. صبح کو بھی پرے، رات کو بھی پرے میں کر کے سوتی ہوں. اور میں بس پھر جب میری فلائٹ تھی اور میں نے نا ٹکٹ بک کروائی تو میں نے رات کو پرے کی کہ خدا صبح میں میرے ساتھ جو پیسنجرز ہو وہ اچھے لوگ ہوں. اور گیس ورڈ کہ میرے ساتھ 2 برٹش لوگ تھے، لڑکے تھے دونوں، اور وہ دونوں بزنس مین تھے. مطلب وہ اتنے دے آر کرسچن، تو وہ اتنے سپورٹیو تھے. آپ کے ساتھ اگر اچھے لوگ نہ ہو تو آپ کی اتنی لانگ فلائٹ بھی وہ بہت آپ کو ہو جاتی ہے نا. تو لیکن خدا نے مجھے اچھا دیا. اور اس کے علاوہ سب سے ایک آپ کو میں مین بات بتاؤں کہ امیگریشن کے لیے جب میں گئی اور میرے ود ان 10 منٹس میری امیگریشن ہوگی، اور سب لوگوں سے اتنے کوشچنس پوچھ رہے تھے. میری لائن میں لوگ تھے آگے تھے نا جو، اور میں ان کو دیکھ کے میں نے نا اکانوے بور پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ مجھے تھا کہ اسٹوڈینٹس سے بہت کوشچننگ کرتے ہیں. اور آنٹی جب میں اس کاؤنٹر پہ گئی ہوں، اس نے میرا پاسپورٹ پکڑا، اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں، میرا نام بھی نہیں پوچھا، سے اسٹیمپ کر کے کہتا جاؤ. تو میں اتنا خوش ہوئی کہ میں نے گھر آتے سب کو بتایا. میں نے کہا یہ گواہی ہے بہت بڑی، میں انٹرویو ریڈی کر کے آئی تھی، اس نے میرا نام بھی نہیں پوچھا. خدا نے سب کچھ کیا ہے. Praise the Lord. God bless you. تھینک یو سو جی مچ. ہم دوسری گواہی کے لیے بھی اپنا تیار ہیں. آمین. دعائیں. اب جو میرے ساتھ ایک سسٹر اور ہے جن کا وہ
کینیڈا کا، خدا کرے ان کا بھی جلدی آ جائے، کیونکہ میں ہاں سمجھ جی، سکتی ہاں ہوں جی، کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ کتنا اسٹریسفل ہوتا ہے جب آپ کی ریلیز ہو رہا ہو. ہاں ہاں بالکل. سسٹر رویندر کی بیٹی. جی 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 خداوند آپ کو اور برکت دے. گاڈ بلیس یو. آمین. تھینک یو سو مچ آنٹی. جی جی کسی اور نے کچھ کہنا ہے؟ میں نے سونیا کے ہاں جی بولو سسٹر. ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਸਾਡੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ. پریز گاڈ. ਪ੍ਰਭੂ چلو ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ. ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ شکر ہے thank you. خداوند. پریز گاڈ. ہاں تو آج سرافین جب پریئر کر رہی تھی تو میں نے شروع میں جب کیلیں گروپ کے لیے اور میرے لیے پریئر کر رہی تھی تو میں نے ایسے دیکھا کہ جیسے کیلیں داؤد ہے، جیسے خداوند یسوع مسیح کا میں، تو میں نے ایسے دیکھا جیسے ایک چھوٹی سی بھیڑ ہے، وہ میں نے پکڑی ہوئی ہے اور میرے ارد گرد ساری بھیڑیں ہی بھیڑیں ہیں اور دروازہ بنا ہوا ہے ایسے جیسے کچھ تو اس کے اندر میں ان کو سارے کو اندر لے کے جا رہی ہوں اور ایک کو میں نے اٹھایا ہوا ہے بھیڑ کو، اور یعنی اس طرح میں نے دیکھا جب سرافین میرے لیے پریئر کر رہی تھی. تو میں خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ خداوند استعمال کر رہا ہے اور وہ دکھا رہا ہے کہ خداوند کے جو روحیں اس نے مجھے دی ہیں، خداوند یہ مجھے فضل دے کہ میں پوری ایمانداری سے ان کے ساتھ خداوند کا کلام جو ہے جس طرح خداوند چاہے شیئر کرتی رہوں، اور ان کی ایک جیسے کہہ لیں کہ جو حفاظت ہے جو وہ خداوند نے میرے ذمہ لگائی ہے تو میں پوری ایمانداری سے کروں. وہ مجھے ایک قسم کا خداوند نے دکھایا ہے کہ اس کا جو کام ہے وہ میں کر رہی ہوں، تو خداوند کا شکر ہو. اور سونیا کا میں نے دیکھا ہے کہ جیسے سونیا اور پرنس کے لیے جب سرافین پریئر کری تھی تو میں نے ایسے دیکھا جیسے پانی ہے، پانی کے اندر اس کے پاؤں میں نے دیکھے ہیں دونوں کے، اور پانی ایسے جیسے اوپر اوپر ہوتا جا رہا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ چاروں طرف پہاڑ ہیں اور پتہ نہیں کیسے اتنا بڑا، مطلب میں نے ان کو دیکھا ہے کہ ان کے جیسے پہاڑ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پانی ایک جیسے ایک وہ ہوتا ہے درمیان میں، اس کے اندر ان کے پاؤں ہیں. تو خدا ان کا شکر ہو کہ خدا ان کو استعمال کر رہا ہے، بڑھا رہا ہے اپنے میں. جیسے میں حسریہ کو یاد ہو گیا کہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ ٹخنوں تک پانی نہیں، ہم اس کے پورے اس میں دریا میں ڈوب جائیں، تو پاکرو کے دریا میں. تو خداوند ان کو بڑھا رہا ہے، پاکرو ان کی زندگی میں جو کام ہے وہ کر رہا ہے، اس کے لیے خداوند کا میں شکر کرتی ہوں. اور جب سریا اور سیڈرک کے لیے سرافین پریئر کری تھی تو میں نے ایسے دیکھا کہ ایک برتن ہے جیسے مٹی کا ہوتا ہے، وہ چوڑا سا ہے، پلیٹ کی طرح بنا ہوا ہے لیکن اس کا منہ بنا ہوا ہے جیسے آپ کو پتا ہے وہ سرائی کا ہوتا ہے یا اس طرح. تو ان کے اوپر جو آئل ہے وہ انڈیلا جا رہا ہے اس فیملی کے اوپر. تو میں خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ خداوند ان کو مسا جو ہے وہ کر رہا ہے. میرا ایمان ہے کہ جو بھی ان کی خدمت ہے خداوند دونوں کو، بچیوں کو بھی خداوند نے مسا کیا ہے. جو بھی ان کی رویا ہے، جو بھی خداوند ان سے کام لے رہا ہے یا آگے لینا چاہتا ہے، خداوند نے ان کو مسا کیا ہے. اس لیے خداوند کا شکر ہو آج کی ساری برکت کے لیے، آج کے سارے خداوند نے جو ٹیسٹ منی کے لیے، سارے میٹنگ کے لیے میں خداوند کا شکر کرتی ہوں. اور اگر کسی کو خداوند نے ٹچ کیا ہے تو یا کچھ تو وہ شیئر کر سکتا ہے، یا کلام کے ذریعے سے آپ کو کچھ نیا ملا ہے سیکھنے کو، یا برکت ملی ہے، یا خداوند نے آپ کے دل پہ چوٹ لگائی ہے کلام کے وسیلے سے، تو وہ
کہ یہ مجھے کرنا چاہیے تھا اور میں نہیں کر رہے تھے، تو وہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ آج خداوند میرے ساتھ بولا ہے۔ جی اوکے جی جی کسی نے ٹچ نہیں کیا، کسی کو ٹچ نہیں کیا۔ اوکے ٹھیک ہے جی ہاں اوکے جی گڈ نائٹ پھر